Hello and welcome again to our free English tutorial project brought to you by Coherent English Classes Darbhanga. You can also find this and tons of free tips, tricks, videos and much more on my Facebook page Coherent English Classes Darbhanga, which link has given below in description box. I am your instructor Mohammad Ziaullah Kamar, the founder of Coherent Groups of Education. This is a second video on this series called Indian Civilization and Culture. Paragraph number 13. The distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human want. आधुनिक सत्ता में विशेष अंतर मानवीय इच्छाओं की अनिश्चित बहुगुणता है. The characteristic of ancient civilization is an imperative restriction upon and a strict regulating of this want. प्राचीन सत्ता की विशेषता इन प्रतिबंधों पर एक अनिवार्य प्रतिबंध है और सख्त विनियमन है. The modern or Western instableness arises really from the wants of living faith in future state and therefore also in divinity. आधुनिक या पश्चिमी अस्थिरतापन की उत्पत्ति वास्तव में उस समय उत्पन्न होती है जब भविष्य में रहने की चाहत हो तथा देवलोक की भी चाहत हो, यानी लोक और परलोक दोनों की लालसा हो. The restraint of ancient और ईस्टर्न civilization arise from belief. प्राचीन या पूर्वी सभ्यता का संयम एक विश्वास से उत्पन्न होता है. Often in spite of ourselves in future state and the existence of divine power. भविष्य की चिंता छोड़ खुद को परलोक की चिंता में लीन कर लेता है. पैराग्राफ नंबर 14. Some of the immediate and brilliant result of modern invention are too maddening to resist. आधुनिक आविष्कार के कुछ तत्कालीन और शानदार परिणाम लाजवाब कर देने वाले होते हैं. But I have no manner to doubt that the victory of man lies in that resistance. लेकिन मुझे कोई संदेह नहीं कि आदमी की जीत संघर्ष में है. We are in danger of betraying away the permanent goods for the momentary pleasure. हम अस्थायी हित का सौदा क्षण भर के आनंद के साथ करने का जोखिम उठा रहे हैं. पैराग्राफ नंबर 15. Just as in West they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism has made still more marvelous discoveries in things of religion, of spirit, of soul. जिस प्रकार पश्चिमियों ने अद्भुत वस्तुओं की खोज की है, ठीक उसी प्रकार हिंदू धर्म ने धर्म, आध्यात्मिकता तथा अंतरात्मा के क्षेत्र में बहुत से अद्भुत सिद्धि प्राप्त की है. पैराग्राफ नंबर 16. But we have no eyes for these great and fine discoveries. पर हमारा ध्यान इतने उत्तम खोज पे नहीं है. We are dazzled by the material progress that Western science has made. पश्चिमी विज्ञान ने जो संसारिक वस्तु में प्रगति की है, उसने हमें चौकाचौंध करके रख दिया है. I am not enamored of that progress. मैं उस प्रगति से मोहित नहीं हूँ. In fact, it almost seems as though God in His wisdom has prevented India from progressing along those lines. वास्तव में ऐसा लगता है जैसे भगवान ने अपने ज्ञान से भारत को प्रगति की उन पंक्तियों के साथ खड़ा होने से रोक दिया. So that it might fulfill its special mission of resisting the onrush of materialism. ताकि वह भौतिकवाद के बढ़ते कदम का विरोध करने के अपने विशेष मिशन को पूरा कर सके. पैराग्राफ नंबर 17. After all, there is something in Hinduism that has kept it alive until now. आखिरकार हिंदुत्व में कुछ ऐसा है जो अभी तक उसे जीवित रखे हुआ है. It has witnessed the fall of Babylonian, Syrian, Persian and Egyptian civilization. ये बेबीलोनियन, सीरियन, फारसियन और मिस्र की सभ्यताओं के पतन का साक्षी बना. Cast a look around you. Where are Rome and Greece? अपने चारों ओर नजर डालो. रोम और ग्रीस कहाँ है? Can you find today anywhere the Italy of Gibbon, rather the ancient Rome, for Rome was Italy? क्या आप आज गिब्बन की इटली या प्राचीन रोम जो इटली में हुआ करता था कहीं पे ढूंढ सकते हैं? पैराग्राफ नंबर 18. Go to Greece. Where is the world famous Attic civilization? ग्रीस जाएं, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है? Then come to India. Go through the most ancient records and then look around you. You would be constant to say, yes, I see here ancient Indian still alive. फिर भारत में आके देखो, प्राचीन अभिलेख उठाकर देखो, फिर अपने आसपास देखो, आप विवश हो जाएंगे कहने को, हाँ, हम यहाँ प्राचीन भारत को भी अभी तक जिंदा देख रहे हैं. पैराग्राफ नंबर 19. ट्रू, दे आर डंग हिप टू हियर एंड देयर. ये सच है, गोबर के ढेर यहाँ वहाँ पड़े मिल जाएंगे. बट दे आर रिच ट्रेजरी बरीड अंडर देम. लेकिन उसके अंदर दफन धनी खजाने भी हैं. And the reason why it has survived is that the end which Hinduism set before it was not development alone material but a spiritual line. और ये अंत तक बच इसलिए गया कि हिंदुत्व ने तरक्की का सिद्धांत भौतिकवाद नहीं वरन आध्यात्मिक चुना था. पैराग्राफ नंबर 20. Our civilization, our culture, our swaraj depend not on multiplying our one self-indulgence but on restricting our one self-denials.
हमारी सत्ता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज, हमारी इच्छा भोग वृद्धि पे नहीं वरन इच्छा भोग को सीमित करने पर टिकी हुई है। पैराग्राफ नंबर 21। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the European, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it. यूरोपीय सत्ता कोई संदेह नहीं कि यूरोपियों के लिए अनुकूल है, लेकिन भारत के लिए विनाशकारी होगा अगर हम इसे नकल करने का प्रयास करते हैं। This is not to say that, ये कहने की आवश्यकता नहीं है, we not adopted and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us. हम लोगों ने नहीं अपनाया और पचाया जितना कुछ हम लोगों के लिए अच्छा था और पचाने लायक था। As it doesn't also mean that even a European will not have to part with whatever evils might has crept into it. और इसका मतलब ये भी नहीं कि जो कुछ बुराई यूरोपियों में पनपनाई है उसका जिम्मेदार वो नहीं होगा। पैराग्राफ नंबर 22। In insane search for material comfort and their multiplication is such an evils, and I make bold to say that भोग विलास की वस्तु का निरंतर खोज और इसमें लगातार वृद्धि एक ऐसी बुराई है और मुझे बोलने पर विवश कर देती है कि the European themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of comfort to which they are becoming slaves. यूरोपियों को अपना दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा यदि वे आराम के भार के नीचे नाश नहीं होना चाहते जिसके वो गुलाम बने बैठे हैं। It may be that my reading is wrong, but I know that for India to run after a golden fleece is to court certain death. हो सकता है मेरा अध्ययन गलत हो, पर मुझे मालूम है कि भारत के लिए गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना घातक साबित हो सकता है। वहाँ गोल्डन फ्लीस का मतलब है सोने की भेड़ की खाल। यह मिस्र की एक पौराणिक कथा है जिसमें एक मिस्र के राजकुमार सोने की भेड़ की खाल की खोज में निकल पड़ता है। वह नदी के रास्ते खोजते खोजते वहां तक पहुंच भी जाता है और उसे पा भी लेता है, पर बदले में अपने भाई को खोना पड़ता है क्योंकि उस खाल की रक्षा कर रहा एक आग उगलने वाला अजगर उसके भाई को निगल जाता है। यहाँ पे गांधी जी ने गोल्डन फ्लीस का उदाहरण देकर ये समझाने की कोशिश की है कि लालच बुरी बला होती है और खुद को इससे दूर रखना चाहिए। Let us engraved on our heart the motto of Western philosopher, plain living and high thinking. आइए हम अपने दिल पे एक पश्चिमी दार्शनिक के सिद्धांत के आदर्श वाक्य सादा जीवन और उच्च सोच को अंकित कर ले। Today it is certain that millions cannot have high living. आज यह निश्चित हो चुका है कि लाखों लोगों को उच्च जीवन नहीं मिल सकता। And we, the few who profess to do thinking for the masses, run the risk in vain search after high living of missing high thinking. और हम में से जो कुछ जनता के लिए सोचने का जोखिम उठाते हैं उच्च रहन सहन में रहने के बाद उच्च विचार को खो देते हैं। पैराग्राफ नंबर 23। सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म कंसिस्ट नॉट इन मल्टीप्लिकेशन बट इन डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री डिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सत्ता असल में बहुलीकरण में नहीं वरन स्वेच्छता से जरूरतों पे लगाम लगाने का नाम है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट कॉन्टिनमेंट रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। ये अकेले संतोष, वास्तविक सुख और सेवा की क्षमता को बढ़ावा देता है। पैराग्राफ नंबर 24। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary, but above a certain level it become a hindrance instead of a help. कुछ हद तक शारीरिक सद्भाव और आराम अवश्य है, पर इसके बाद यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। Therefore, the ideal for creating an unlimited number of wants and satisfy them seems to be delusion and a snare. इसलिए अनंत इच्छाओं का पालना उसकी पूर्ति एक भ्रमक जाल जैसा लगता है। The satisfaction of one physical needs, even the intellectual needs of one narrow self, must meet at certain point a dead stop. व्यक्ति के स्वयं की संकुचित शरीर तथा मानसिक जरूरतों की पूर्ति एक निश्चित बिंदु पे जा मिलती है, वो है मौत। Before it degenerate into physical and intellectual voluptuousness, इससे पहले कि यह जीवन भौतिक और बौद्धिक विलासिता में गल जाए, A man must arrange his physical and cultural circumstances. एक आदमी को अपने शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। So that do not hinder him in his service of humanity on which all his energy should be concentrated. ताकि मानवता की सेवा में बाधा न दे जिस उनकी सारी ऊर्जा केंद्रित होनी चाहिए।
Thanks for watching video, and for more videos please subscribe our channel.